Good morning students, welcome to our YouTube channel. Students, in this video you are going to learn the 5th chapter of your 10th standard geography, Maharashtra board, natural vegetation and wildlife. So as you know, up to 4 chapter you have read about the field visit, physiography of India and Brazil, and the 4th chapter was a climate. तो आप समझ गए होंगे कि this whole book is a comparison between the two countries, that is our country India. We must know about the India because it's our country, we are living on this land, and the another one is a Brazil. So इस चैप्टर में भी आप सीखोगे कि क्या नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ डिफरेंसेस है इंडिया एंड ब्राज़ील में एंड व्हाट आर द सिमिलरिटीज. कुछ तो डिफरेंस है एंड कुछ तो सिमिलरिटी है दैट यू आर गोइंग टू लर्न. So natural vegetation and wildlife. Natural vegetation means like plants, types of plants, and the wildlife you already know, like animals, elephants, tiger, etc. So now these 6 figures are given, 6 images are given. First is a natural vegetation. This type of plant, ये पौधा जो है, ये प्लांट जो ट्री है, कहाँ मिलता है? कैक्टस है. कैक्टस जनरली इट इज यू कैन फाउंड दिस कैक्टस और aloe vera, the area that receive the very less rainfall, deficient in rainfall. Second image is a paper tree, and third is a teak tree, and this bird, you know the bird name. This generally found in a Brazil. All these vegetation and animals found in a Brazil, and this is a rufous billed thrush, rufous billed thrush bird, and this is a Brazilian jaguar, and this anaconda. So this is, I think, name the fauna shows. First of all, come to the what do you mean by fauna. In this chapter you will see, like our chapter name is a natural vegetation. Vegetation generally indicate by means plants. Flora को plants कहते हैं, right? And fauna, these two words fauna and flora you will see in this chapter. So I think you must keep in mind the meaning of the fauna means animals, wild animals, and flora means plants or natural vegetations. So before going to further, सबसे पहले without map the learning of geography is meaningless. So आप मैप के बिना ज्योग्राफी समझ ही नहीं सकते हैं. तो that's why I have keep this globe world map in front of you. Now look at this 0 degree. यहाँ पे भी 0 degree नॉर्थ एंड साउथ है, यहाँ पे भी 0 degree नॉर्थ एंड साउथ है. दिस 0 degree, ये जो लाइन है, दिस लाइन 0 degree latitude, it is called latitude. Divide the whole world, divide the map of the world into 2 equal parts. The upper part, ये जो ऊपर का पार्ट है 0 degree नॉर्थ लिखा हुआ है, ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ है, दैट इज नोन एज अ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है, पूरा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर आ जाएगा. और जो साउथ में है 0 degree की जो नीचे है, that part is known as the southern hemisphere. अब now our country India is here. Look at this. माउस का कर्सर देखो. Our country India lies in the second chapter में आपने पढ़ा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि ये मेरिडियन है, ये ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर रहा है ग्लोब को. तो इंडिया लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, while the Brazil lies in the southern hemisphere as well as western hemisphere, right? अब ये देखो, अब फॉर दिस चैप्टर, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको 0 डिग्री, ये जो है ना 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो दैट इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड पासेस थ्रू द दोज कंट्रीज दैट रीजन्स नोन एज द इक्वेटोरियल रीजन, है ना. ये 0 डिग्री लैटिट्यूड जहाँ से पास हो रहा है, यहाँ पे देखिए इक्वेटर नाम का कंट्री है, यहाँ पर इक्वेटर नाम का कंट्री है, सॉरी. तो आसपास का जो इलाका है और 0 डिग्री जिस कंट्री से गुजर रहा है, दैट इज द इक्वेटोरियल कंट्री. एंड इक्वेटोरियल कंट्री का नाम ही इक्वेटोरियल, दैट इक्वेटोरियल रीजन क्यों रखा गया? बिकॉज दैट रीजन्स डू नॉट हैव हार्श क्लाइमेट. वहाँ पे सर्दी और गर्मी की शिद्दत नहीं पड़ती. नॉट अ वेरी सीवियर हॉट, नॉट अ वेरी सीवियर कोल्ड लाइक इंटीरियर. लेकिन अगर हम ऊपर साइड आएंगे, इक्वेटर के जितना ऊपर जाएंगे, तो टेम्परेचर बहुत ही सीवियर रहेगा. ठंडियों में फॉर एग्जांपल इन आवर कंट्री इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, लाइक. तो ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, टेम्परेचर रीचेस टू 10 डिग्री 8 डिग्री सेल्सियस, एंड गर्मियों में 45 डिग्री तक पहुंचता है. लेकिन इक्वेटोरियल दैट 0 डिग्री इक्वेटर जहाँ से पास होता है, उन तमाम देशों में इंक्लूडिंग ब्राज़ील इज़ अ इक्वेटोरियल कंट्री, द क्लाइमेट इज़ अ मोर और लेस सेम. वहाँ पे ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती है, जबकि वाइल दैट रीजन रिसीव द
रेनफॉल एंड सनशाइन थ्रू आउट द ईयर, साल भर वहाँ पे बारिश होती है, सनशाइन मिलती है। और दूसरी चीज़ बता दूं कि जितना आप इक्वेटर, ये जो इक्वेटर है, जितना आप ऊपर जाएंगे, नॉर्थ में ऊपर जाएंगे या साउथ में नीचे जाएंगे, राइट, यानी कि इक्वेटर से दूर जाएंगे, सिंपल। एज यू गो अवे फ्रॉम द इक्वेटर you will observe the decrease in the natural vegetation. Natural vegetation, generally the equatorial region receive the rainfall and sunshine throughout the year. That's why equatorial region have the abundant and evergreen rainforest. इसलिए यही कारण है, that is the reason that you heard about that Amazon rainforest. Last year Amazon rainforest में बहुत बड़ी आग लग गई थी, है ना। हिस्ट्री में इतनी बड़ी आग कभी नहीं लगी है अमेजोन रेन फॉरेस्ट में। यू कैन सर्च अबाउट दैट। सो बहुत क्लाइमेट को नुकसान हुआ बिकॉज अमेजोन रेन फॉरेस्ट कंसिस्ट द ह्यूज फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर है। अब यू नो द ग्रीन फॉरेस्ट, द फंक्शन ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट इज, ट्रीज का काम की क्या है, टू इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेल ऑक्सीजन, एंड वी ह्यूमन बींग्स इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स का रहना हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन एंड टेक्स द पॉइजनस गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अस। So now you can see the Brazil rainfall varies due to the physiography. In most part of the equatorial region, it rains throughout the year. As we move away from the equator, the number of rainy days as well as amount of rainfall reduces. अब amount of rainfall reduce होगा तो vegetation भी आपको कम मिलेगा। For example, मैं आपको इंडिया की, अब इंडिया में भी सेम कंडीशन है। हमारा जो लैटिट्यूड स्टार्ट हो रहा है 8 डिग्री से, यानी इक्वेटर से जस्ट 8 डिग्री दूर है, लेकिन यहाँ 37 डिग्री पे खत्म हो रहा है इंडिया, राइट। तो ये इक्वेटोरियल रीजन है, जो हमारे जो साउथर्न मोस्ट रीजन है लाइक केरला, तमिलनाडु, तो केरला वगैरह का जो एरियाज है दे रिसीव द रेनफॉल, जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। मोस्टली द अंडमान निकोबार आइलैंड सुना होगा, वो तो 6 डिग्री पर है। तो वहाँ पर क्या होता है, that region, Kerala and Andaman Nicobar regions of India receive rainfall throughout the year and sunshine. So that's why that region have the evergreen forest. आप देख सकते हो कि इंडिया में यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, यहाँ पर है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि दैट रीजन इज वेरी अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल रीजन, सो व्हाई दिस रीजन, दिस नॉर्थर्न इंडिया, यहाँ पर माउस का कर्सर देखो, व्हाई दिस रीजन हैव द एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसका एक रीजन ये है कि व्हेन द मानसून कम्स टू इंडिया, दे हैव द हिमालयन रीजन। अब हिमालय रीजन यहाँ पे मेघालय फॉरेस्ट है, तो इससे क्या होता है कि मानसून बियरिंग विंड ना, जो क्लाउड्स है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है माउंटेन से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है। दैट रीजन नॉट ओनली रिसीव द रेनफॉल फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून बट ऑल्सो द अरेबियन ब्रांच ऑफ मानसून। तो दोनों ब्रांच ऑफ मानसून की वजह से दैट रीजन रिसीव द रेनफॉल। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण दैट रीजन, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हमारे जो 7 सिस्टर स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, दैट रीजन हैव द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन यहाँ पर आप देख लो, दिस इज द थॉर्नी, दिस ग्रे कलर इंडिकेट दैट दिस रीजन रिसीव द वेरी लेस रेनफॉल, एंड यहाँ पे तो ये हॉट डेजर्ट है, बहुत ही कम बारिश होती है, तो दैट्स व्हाई दिस रीजन इज अ डेजर्ट। And now come to the Brazil. Brazil has the largest number of vegetation species in the world. क्यों हो रही? क्योंकि that region, Brazil, mostly regions of Brazil lies in the equatorial region. जहाँ पे that region receive the rainfall and sunshine throughout the year. That's why वहाँ पे बहुत सारे vegetation और बहुत सारे animals मिलते हैं. Like fine trees like pau Brazil, rubber, mahogany, rosewood and varieties of orchids. Orchids मतलब fruits. ये सारे एग्जाम्पल जो है ना एवरग्रीन, रबर, महोगनी, रोजवुड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। नाउ कम टू द इंडियन वेजिटेशन। नाउ टाइप्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट या इंडियन नेचुरल वेजिटेशन। द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया आर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन मतलब दोज रीजन नियरर और लाइज और नियरर टू द इक्वेटोरियल रीजन। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, लिटोरल एंड सॉम फॉरेस्ट। अब एक बता दूं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बारे में तो बता चुका हूं कि दैट रीजन वेरी नियर और वेरी एडजेसेंट और वेरी क्लोज टू द इक्वेटोरियल रीजन, राइट। हमारे इंडिया में दैट केरला एंड अंडमान निकोबार रीजन एंड सम पार्ट ऑफ द साउथर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, और जो हमारा जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है टोटली एवरग्रीन फॉरेस्ट है।
ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी एज वी मूव अप, है ना, जितना हम ऊपर जाएंगे, जैसे लुक एट दिस, यहाँ पर ये जो साउथर्न रीजन है एवरग्रीन फॉरेस्ट, लेकिन हम जितना ऊपर जाएंगे that we move away from the equatorial region, so that's why number of that rainfall and vegetation, rainfall will decrease, so as well as natural vegetation also decrease. अब you can observe that this green, light green color, dark green color indicate the evergreen forest, while the light green color indicates the deciduous forest. So we can say that हमारे इंडिया में नियर मोर देन 50% जो फॉरेस्ट है वो फाउंड होते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि पतझड़ वाले. फॉर एग्जांपल नीम, टीक, नीम का फॉरेस्ट हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत मिलता है. आप यू कैन ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग दैट समर मंथ, अप्रैल मई के महीने में नीम का जो दरख्त है, पेड़ है, वो झड़ जाता है, उसके पत्ते निकल जाते हैं, नेकेड नजर आता है, राइट. लेकिन वापस वो 2 महीने बाद अगस्त में पूरा हरा भरा हो जाता है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, दैट प्लांट, दैट ट्री रिसीव द रेनफॉल. So that deciduous मतलब they leave their leaves, है ना, they remove their leaf during the hot season. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है that we will solve. Which forests are found in the western snow-capped region? Western snow-capped, यहाँ पर ये snow है, तो which forest? Himalayan rainforest generally found. On which coast do you mainly find the coastal vegetation? On which coast? Generally the western Indian region and eastern Indian region, है ना. वेस्टर्न पे हमारे जो वेस्टर्न घाट है, हमारे महाराष्ट्र से भी गुजरता है वेस्टर्न घाट, केरला, फिर तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और इवन गुजरात तक, महाराष्ट्र तक ही वेस्टर्न घाट है. यहाँ पर ईस्टर्न आता, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड उड़ीसा पे ईस्टर्न घाट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाई मैक्सिमम एरिया इन इंडिया एंड वाई? डेसिडियस फॉरेस्ट, बिकॉज इंडिया डू नॉट रिसीव द मच रेनफॉल, राइट. इंडिया में ज़्यादा बारिश नहीं होती है, सिर्फ बरसात के मौसम में, ड्यूरिंग द रेनी सीजन फ्रॉम जून टू सितंबर वी रिसीव द रेनफॉल. दैट इज द रीजन India having the more deciduous forest. Last question, where do you find thorny and shrub vegetation? Thorny मतलब that vegetation or that plant that receive the very deficient means very less rainfall, like hot desert region. अब hot desert region में cactus मिलेगा, बबूल का plant मिलेगा, है ना, aloe vera मिलेगा, that grow in a very less rainfall. अब यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ज्योग्राफिकल रीजन क्या है, इन रीजन विच रिसीव मोर देन 2000 mm रेनफॉल. या जनरली आप देखिए जब भी रेनफॉल को इंडिकेट करते हैं सेंटीमीटर में, तो 2010 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 2000 डिवाइडेड बाय 10, तो 200 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं ऑन एन रेनफॉल. तो वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, और एवरग्रीन फॉरेस्ट का एवरग्रीन फॉरेस्ट, दिस फॉरेस्ट लीव्स आर ट्री दैट ब्रॉड एंड ग्रीन. उनकी जो पत्तियाँ रहती है वो बहुत ही चौड़ी एंड मोस्टली वेरी डार्क कलर में होती है. एंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऐसे फॉरेस्ट रहते हैं कि इवन द सनशाइन, मतलब सनशाइन, सूरज की रोशनी उन फॉरेस्ट में ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है इतनी. तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट. नाउ इंडिया में हिमालयन फॉरेस्ट भी रहती है. हिमालयन फॉरेस्ट मतलब दोज फॉरेस्ट लाइज इन अ वेरी हाई अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई. Himalayan there are three types of Himalayan forest according to the altitude, ऊंचाई के हिसाब से. इन द जो सबसे ऊंचाई पे रहते थे, इन द एरियाज लोकेटेड एट द हाईएस्ट अल्टीट्यूड, सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज आर फाउंड. जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है वहाँ पे फ्लावरिंग ट्रीज मिलेंगे, वाइल मीडियम एल्टीट्यूड पर कॉनीफेरस ट्रीज मिलेंगे. कॉनीफेरस ट्रीज लाइक पाइन, डियोडर, फिर एंड एट द फुट हिल, बहुत जो नीचे है, एट द फुट हिल ऑफ द हिमालय, mixed forests are found. These include both the coniferous as well as deciduous type of forest, and the proportion of salt trees is higher. You can see at the book at the last page of page number 37, this pine tree is a coniferous type of trees. Deodar pine tree मतलब coniferous मतलब जो बहुत ज़्यादा ऊंचे रहते हैं. Deodar, these are the coniferous trees जो कि बहुत ज़्यादा खड़े और narrow type, यानी broad नहीं रहते हैं, लंबे से रहते हैं. Their height is very high. So I forget to show you this property of evergreen forest found in the region near the equator or close to tropics. This region receive heavy rainfall throughout the year. Thick canopy are found in this region. Canopy मतलब उनके जो पत्ते रहते हैं वो बहुत ही चौड़े और घने और डार्क ग्रीन कलर के रहते हैं, because they receive sunshine and rainfall throughout the year. That's why they have the large canopy. Main trees mahogany, ebony, rosewood already seen, and the tropical evergreen forest in Brazil is known as the lungs of the earth. Already I
Now some questions in this, in which country do equatorial forests occupy a greater area and what could be the reason behind it? In which country? Obviously in Brazil, because Brazil lies in equatorial region. Next question, which type of forest found in India and in which type of forest found in India are not found in Brazil? ऐसा forest जो कि इंडिया में मिलता है, that is generally Himalayan forest है ना, एंड कोस्टल फॉरेस्ट इंडिया में मिल रहा है, लेकिन ब्राज़ील में हिमालयन फॉरेस्ट नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पे कोई बड़ी सी पहाड़ी नहीं है. लाइक वी हैव द हाईएस्ट माउंटेन हिमालय. लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन ब्राज़ील आर फाउंड इन इंडिया टू? लाइक एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, जो कि दोनों कंट्री इंडिया ब्राज़ील में मिलता है, एवरग्रीन एज वेल एज डेसिडियस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री आर ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? Greater diversity of vegetation in many type of plants, generally Brazil, because Brazil having the hot biodiversity. Hot Brazil is a country, those country near the equator having the known that region is also known as the biodiversity hot spot. अब वो biodiversity plants में भी है, animals में भी है. Next question, considering the climate and vegetation types, in which country will forest based occupation flourish? Generally in Brazil में होगा क्योंकि Brazil having the world's largest forest. हमारे इंडिया में तो 33 रहना चाहिए, 33%, लेकिन हमारे इंडिया में 20% भी फॉरेस्ट नहीं है. So that's why we need to protect and conserve our forest because it ultimately it's our benefit. So the next part of this chapter is a wildlife. ब्राज़ील और इंडिया में कौन से वाइल्ड लाइफ सिमिलर है और डिफरेंसेस है. लाइक आपको तब कीप इन माइंड दैट द ब्राज़ील इज द बायोडाइवर्सिटी लोकेटेड एट द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट रीजन नियर द इक्वेटोरियल रीजन. दैट्स व्हाई द ब्राज़ील हैविंग द लार्ज नंबर एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स वाइल इंडिया हैव द लेस नंबर ऑफ एनिमल्स. लेकिन इंडिया में फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से इंडिया में लॉट ऑफ not only tiger but also the lion and tiger both are found in India. Both all the animals categorized in the fauna, जो कि मैं आपको earlier बता चुका हूँ. This is India. Show the following animals in outline map of India. These animals: Bengal tiger generally found in the Assam region, Sundarban National Park. Great Indian bustard found in the Rajasthan region. Olive ridley turtles mostly found in the coastal region of Odisha and Andhra Pradesh. And one-horned rhinoceros mostly found in the Assam region, Assam state. And Nilgiri Thar goat generally found in a Nilgiri biodiversity hotspot region. And lion, Asiatic lion found in a Gir forest of Gujarat. And Gangetic dolphin found in the rivers of Ganga. In India में गंगा रिवर जहाँ से जो बिहार और उत्तर प्रदेश से गुजरती है वहाँ पे मिलेगा Gangetic dolphin. एंड क्रोकोडाइल, घारियाल्स, ये दोनों ही एक ही तरीके के एनिमल्स हैं, जनरली फाउंड इन द उड़ीसा. सो दिस कोरिलेट ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड द फ्लोरा एंड फाउना देयर. बहुत सारे एनिमल्स स्पेसिफिक लोकेशन पे ही मिलते हैं बिकॉज ऑफ देयर हैबिटेट सूट देयर क्लाइमेट सूट देम, राइट. अब यू कैन नॉट स्नो लेपर्ड फॉर एग्जांपल, स्नो लेपर्ड यानी कि जो बर्फीला चीता है वो हिमालयन रीजन में मिलेगा. हम उसको लाके महाराष्ट्र और साउथर्न इंडिया में नहीं रख सकते हैं बिकॉज दे नीड देयर हैबिटेट एंड देयर क्लाइमेट सूट देम. तो दैट्स व्हाई दैट इज द ज्योग्राफिकल रीजन देयर. अभी फॉर एग्जांपल फ्लोरा भी बोला है. फ्लोरा मीन्स एवरग्रीन फॉरेस्ट जनरली फाउंड इन द साउथर्न रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. इट मे नॉट फाउंड इन द वेस्टर्न घाट, सॉरी दैट वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान में तो हॉट डेजर्ट है, राइट. सो दैट इज द को रिलेशन बिटवीन द ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड फ्लोरा एंड फाउना. सो लाइक एनिमल, कैमल्स जनरली यू कैन फाउंड इन अ desert area. You cannot notice the camel in a Himalayan region in the southern India or western Ghats. Similarly, one-horned rhinoceros you can found in the swampy and marshy lands of Assam. तो हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है, उनके क्लाइमेट और उनका जो हैबिटेट है वहीं पे मिलेंगे. अगर उनका हैबिटेट निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया तो वो दे मे बी डाई. For example, river estuaries and coastal areas are home of many turtles, crocodiles, gharial. At the last, it is written that the many animals and
that means many animals and green vegetation, natural vegetation are endemic to, endemic, ENDIMIC, endemic मतलब means that found in those location, उसके अलावा वो कहीं भी नहीं मिलते. जैसे फॉर एग्जांपल वन हॉर्न रिनोसर्स, एक सिंह का जो गेंडा है हमारे आसाम में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता, राइट. एशियन लायंस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में मिल रहा है, ये एंडेमिक टू इंडिया है, सिर्फ इंडिया में ही मिलता है, बाकी देशों में नहीं मिलता है. एंड मेनी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन मतलब वो तेज़ी से उनका बहुत सारा हंटर हो रहा है, उनका हैबिटेट क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वो तेज़ी से डाई हो रही है, उनका पॉपुलेशन कम हो रहा है. एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म होता जा रहा है. एंड बिकॉज ऑफ पोचिंग, पॉल्यूशन, पोचिंग मतलब हंटिंग, उनका शिकार किया जा रहा है, पॉल्यूशन एंड रैपिडली अकोरिंग. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क बनाया उनके प्रोटेक्शन के लिए, और उसमें भी बफर जोन दिया है और कई कई मेन सेंटर दिया है कि वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड है. तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग द स्टेप्स टू प्रोटेक्ट देम. सो वी नीड टू ऑल्सो प्रोटेक्ट एंड enhance our conservation and protection to our biodiversity. We need to make a plan how we can protect. So the government of India has set up a number of national parks, wildlife sanctuaries, bird sanctuaries, biosphere reserve for the protection of wildlife and forest in India. अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा रीजन होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक सिटी के मोर देन नियर 50% एरिया सिटी का ऑक्युपाइज कर लेता है बायोस्फीयर रिजर्व. उसमें बहुत सारे नेशनल पार्क आते हैं. फॉर एग्जांपल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में इतना बड़ा फैला हुआ है कि वो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, 3 स्टेटों के जो बॉर्डर से मिलते हैं वो मिलके बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ नीलगिरी है. सो बायोस्फीयर रिजर्व इज़ अ वेरी लार्ज एरिया, वाइल द नेशनल पार्क से छोटा एरिया है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटा सी जू वगैरह बहुत ही छोटा एरिया है. So I hope after watching this video you can able to solve this, like a tropical forest, broad leaves evergreen regions in India, southern India or equatorial Kerala regions in Brazil like Amazon rainforest. Very easy. After watching this video, these are all the questions you can able to solve. Thank you for watching this video. Have a nice day.